Welcome to live trading session of Tradify. This is Euro USD daily chart. So at present we can see Euro made a high of this. $1.1571, then it took support of, this is daily chart, 1.1302. If we look the 4-hour chart, is totally sideways right now. Euro USD market is undecided at present, and today is Monday, so unless we have the US session, trend is very unclear. And if we see the 1-hour chart of the Euro USD, so almost oscillating between 1.1398, 1.1309. But one thing we must notice, first it make low of 1.1309, then 1.1317, then 1.1329, and it's also making high, then 1.1388, then 1.1381. So it's range bound and it's making the lower high and higher low, so it's looking for breakout. And if we go for the lower time frame, suppose 30 minutes, it's same thing. So unless Euro break this 1.1309, or at least for today's trading 1.1329 or 1.1381, trend is trend is not clear, it's sideways. And same thing we can notice even in the gold. If we see the gold, so this is the gold, this is the 4-hour chart of the gold. Gold is basing here, $32591. Gold rally, recent rally, gold have two rally. It started from 3194 and one started from 2954. So already gold has correction of 78.6% retracement from here to here, that is 3260. After that gold ye 3259 pe it's taking support. So unless gold break this is profit booking or this is reversal. So unless gold break 3259, we can't say gold is bearish. However, we can see again here gold make this high here. This is also the M formation. Then it came down. So fall from 3501 to 3259 is direct fall without any interruption. After that gold is not breaking this. So if we can see the gold 1-hour chart,
So here you can see this is the area of the gold is taking support here. Since daily trend is still up, so we should bias gold is still bullish. To say gold bearish, we need concrete evidence. Still we can't see that. 3280 to 3261, each time it falls in this zone, gold jump. So buying is coming here for the gold, and gold went up here. Selling is coming between this zone. So if we see here, one level was this, another level was this. Moving average convergence is here in the daily chart, sorry, 1 hour chart, below 50 EMA, below 200 and below 13 EMA. So in generally जब ऐसा मूविंग एवरेज मर्ज होता है तो दे हैव पोटेंशियल टू मेक न्यू लो, लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो पहले 3261 टच किया था इसके नीचे नहीं जा रहा है गोल्ड. So definitely here is the, we can say again it has potential to go up again 3326, लेकिन उसके पहले gold has to break this one 3301. So once cross this area, then right now see, now all this candle is bullish. After that we have two candle. Now this two candle you see here, now this took all the sell. So it is very clear gold have very strong buying zone between 32612 to 3280. So unless gold break 3261, gold is not bearish. Yeah, this fall we can say it is the profit booking is going on, but for to say gold is bearish, still it will be very immature. If we see the gold 4 hour, not breaking this one, and as per the this price action, gold has to break this one 3194 or at least 3260, then we can say selling opportunity is there. But at present it's almost saying buying opportunity exists here between 3260 to 3280. Main is that gold, if we check the daily chart, gold is still bullish unless we have the gold rally started from 2954. So at least 50% of this last rise, so gold has to this 50% is here, and check this, gold went up here 3243, then this two candle, it is very strong candle. After that gold shoot up. So as per the daily chart, unless gold break 3206, and when it breaks 3206, then we can say more than 50% retracement. 50% retracement of the last rise means it started from 2956, but if you will see, then this is the rise of the gold here, then here. So to say gold is bearish, it must break 3207. So as per the 1 hour,
gold. Now it's 3289. See here, buying is coming, and if we go for the lower time frame, so this fall is started from here. So take more confirmation. See this area, it break this low, then it bounce back. See here, first it goes here, then it break this. So this is typical pattern of the gold. It breaks, everyone is thinking gold sell sell sell, then it reverse and reverse to this. So in same case, if you want to take more confirmation, then gold may break, go up here, came down, and then again will rise. So confirm trade for the gold as per the lower time frame. $3,292. So present range of the gold is this one. Here it's false break, it make low of 3277. अगेन यहाँ पे 3277 पे लो, इसको ब्रेक किया, इसके बाद फिर गोल्ड ऊपर जा रहा. तो अब ये कह सकते हैं कि गोल्ड जब तक इसको ब्रेक ना करे, इट इज यूजलेस टू सेल. नाउ सी द buying, and if break this, then chance is that gold will go up here. 3302, and if you go for the 1 hour, as per the 1 hour, next target for the gold breaks 3292 is here, 3302, then 3326. Here buyer is trapped, 3336 to 3326. Gold, and not only gold, let's see the USD CHF. USD CHF, we see the daily chart. This is a daily chart of USD CHF. Fall started from, and after tariff threat, जब से ट्रम्प ने धमकाना शुरू किया ट्रेड टैरिफ लगाएंगे, it came down to here. इसके पहले USD CHF या स्विस फ्रैंक ये लो बनाया अगेंस्ट डॉलर. अब यहाँ पे कहानी ये बनती है कि इट्स ब्रेक दिस लो, उसी दिन फिर ये रिवर्स हो गया गोल्ड, सॉरी USD CHF. एक ये एरिया था, अब ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और ये लेवल है 8241. RSI देखते हैं इसका स्विस फ्रैंक का, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड. अब यहाँ से अभी 45 के आसपास है, 41, सो स्टिल बिलो 50. सो अभी तक ये कह सकते हैं कि स्विस फ्रैंक अभी भी बेयरिश है. अब 4 आवर चार्ट को अगर हम डिकोड करते हैं तो ये है, इसके नीचे गया था शार्प फॉल, और ये जो लेवल था स्विस फ्रैंक का, ये
8185 से ये जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर ये जाता है, वो फर्स्ट टारगेट होता है। तो लेट्स चेक ये यहाँ से जितना गया था नीचे, ऊपर भी जनरली उतना ही जाता है। ये ऑलमोस्ट ये जो लेवल था ये परफेक्ट, ये अगर पता हो कि जनरली ये होता है, देखें सेम एरिया को ये टच किया। लेकिन अब कहानी ये है, 4 आवर में इट्स मेकिंग द हायर लो, हायर लो। तो इसके पहले जो स्विस फ्रैंक का हाई था ये था, तो ये इसको अगर हम लेते हैं कि अगर ये फॉल्स ब्रेक है, तो ये यहाँ से नीचे आया, ये फिर से इसी लेवल पे गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 0.8382। सो दिस इज मेजर, कह सकते हैं कि ट्रेंड डिसाइडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। या यहाँ से ये फिर से यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ से ये फिर ऊपर जा सकता है। एक बार ये 8135 ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और फिर से नीचे आया। अगर ये दोबारा ब्रेक करता है मीन्स 0.8312, इफ इट क्रॉस देन इट विल बी कंफर्म, इट विल गो अप। अब ये है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं अगर किसी को तो 1 आवर चार्ट देखते हैं। 1 आवर चार्ट क्या बोलता है। See, this is the 1 hour of the USD CHF. ये 200 मूविंग एवरेज है 1 आवर चार्ट में। तो 200 मूविंग एवरेज ऑल्सो इज ए ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल। सो 0.8241। सो 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंगली 0.8241 अगर ब्रेक करता है देन इट कैन फॉल शार्पली, एंड एज पर द प्राइस एक्शन सी हियर, तो चांस ये भी है कि यहाँ से ये 0.8241 आ सकता है। ये ट्रेंड विल बी वेरी क्लियर once US market is open. So after 4:30 Dubai time things will be little clear, and after 5:30 to 6 p.m. it will be very clear then. अब गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड अभी कहाँ है। ये जब तक यूएस मार्केट ओपन नहीं होता, मैं सबको बोलता हूँ कि आज जो है फर्स्ट डे है, तो थिंग्स विल बी वेरी अनक्लियर। जैसे यूरो यूएसडी में आज क्या हुआ, यूरो यूएसडी में मेनली देखें गोल्ड में, अभी यूरो यूएसडी में शार्प फॉल आया, फिर शार्प राइज, तो इसलिए कि अभी तक ट्रेंड क्लियर नहीं है। ये 1.1329 अगेन इट गोज अप। सो सब कुछ अभी रेंज बाउंड है, और जहाँ तक अभी भी टोटल क्लैरिटी नहीं है कि चाइना नेगोशिएट करेगा या नहीं करेगा। करना तो सबको है, लेकिन पहले ब्लिंक कौन करेगा, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। सो एंड एज पर द 1 आवर चार्ट देखते हैं तो ये ऑल द मूविंग एवरेज जो है ये मर्ज हो रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। तो मार्केट जब ट्रेंड नहीं कर रहा है तो दिस ऑल विल मिसलीड इफ एनीवन ट्रेड दिस। इसके ऊपर जनरली आफ्टर कन्वर्जेंस इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जाके अगेन इट कम डाउन, व्हेन इट्स कम डाउन अगेन इट्स गोज अप। अब इसमें हम ये ना कहें कि मूविंग एवरेज इज गिविंग फॉल सिग्नल, नहीं, क्राइटेरिया ये है कि
market is range bound, so range is very important. Forget any other indicator. Either it is, सिर्फ एक इंडिकेटर था गोल्ड में जो कि लोअर हाई बना रहा था गोल्ड, लेकिन गोल्ड इज टेकिंग वेरी गुड सपोर्ट। और देखें ये गोल्ड अभी, ये जो सपोर्ट एरिया है इसका, ये बहुत ही अच्छा एरिया था गोल्ड का। 3261 3261 अगेन इस रेंज में जब भी जाता है गोल्ड उसके ऊपर ये जाता है। और चार्ट को अगर पूरा क्लियर करना है तो मैं ये है गोल्ड की कहानी। सो चूंकि मेन ट्रेंड गोल्ड का अप है एज पर द डेली, सो जो मेन ट्रेंड है उसके साथ जाने में जनरली लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोल्ड बेयरिश है, नहीं, गोल्ड बेयरिश नहीं है अभी, जब तक कि गोल्ड जो है ये देखें 3259 एज पर द 4 आवर चार्ट, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता हम नहीं कह सकते हैं। और गोल्ड बाइंग भी इसको जब तक ब्रेक नहीं कर सकता। इसके बाद जो सेलिंग आई है गोल्ड में ये यहाँ पे आई है, तो 3336 टू 3259 ये रेंज लग रहा है अभी गोल्ड का। और शॉर्ट टर्म में चलिए 5 मिनट चार्ट को अगर एक्सप्लोर करते हैं तो सेम लेवल है ये रेजिस्टेंस है। लेकिन गोल्ड अगर फिर से आता है 3260 ये लेवल, अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है देन इट विल बी कंफर्म ये 3277। और यहाँ से आके ये फिर से ऊपर जाता है देन अगेन इट विल बी बेटर एंड जस्ट स्टॉप लॉस विल बी हियर। 3273 के बाद गोल्ड का जो लेवल है वो 3259, सो बेटर होगा कि 3259 वेट करें, या फिर ये देखें 4 आवर का 1 2 3 कैंडल, लास्ट 3 कैंडल जनरली वीकली चार्ट में बोलते हैं, लेकिन इसमें भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये लास्ट 3 कैंडल का हाई एंड लास्ट 3 कैंडल का लो, ये तो 3303 के बाद, हाँ लेकिन ऑलवेज मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी हो तो एक बार ब्रेक करने के बाद जनरली एक बार फिर से नीचे आती है, फिर रीटेस्ट में एंटर करें अगर किसी को एंटर करना हो तो। यूरो यूएसडी वही कहानी, रेंज बाउंड, ये again it touch all the moving average and then again it's coming down, so trend is not clear, market is range bound, so as long ये रेंज बाउंड पीरियड जितना लंबा होगा ब्रेकआउट उतनी लंबी होगी। अगर ये 2-3 दिन तक और इस रेंज में मूव करता है तो जो ब्रेकआउट होगा वो फिर एटलीस्ट 200 पिप्स का होगा ये। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे गोल्ड की सॉरी यूरो की कहानी क्या है, तो 13302 इसको ब्रेक करने के बाद चांसेस ये हैं कि
अगर RSI देखते हैं यूरो का, तो एक डाइवर्जेंस एपियर होता है। डाइवर्जेंस इन द सेंस कि ये यहाँ से यहाँ तक तो गया, लेकिन RSI जो है इट डज नॉट मेक न्यू हाई। और RSI की कहानी ये है, देखिए RSI का जो पैटर्न है ट्रेंड लाइन का, अब ये ब्रेक होने वाला है ये। लेकिन उसके पहले जो है सेल करने के लिए, कि मीन्स इट विल बी अ वेरी गुड रिवर्सल, वी हैव टू सी कि ट्रेंड लाइन यहाँ भी ब्रेक हो प्राइस एक्शन में भी। और ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन में अभी मार्केट सिंस रेंज बाउंड है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे केस में जैसे देखेंगे 4 आवर में, तो जब इतना कंफ्यूजन हो कि, तो लाइन चार्ट जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। अब लाइन चार्ट देखेंगे तो ये बहुत क्लियर है इसमें कि ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, और ये लो, फिर ये लो, तो ये रेंज इज स्क्वीजिंग। रेंज बहुत छोटा आ रहा है। पहले जो रेंज हमारे पास था यूरो का क्लोजिंग बेसिस पे, जो रेंज था यहाँ ये था 1.1 से ये, अब ये रेंज हो गया है, फिर आया रेंज ये, अब रेंज है ये, और ये देखें ये, तो रेंज इसका छोटा हो रहा है। इसका मतलब इट्स रेडी टू ये। सो ऑलमोस्ट 40 पिप्स का अब ये रेंज है। अब ये इधर जाए या उधर जाए, क्योंकि हायर लो एंड लोअर हाई हर जगह बन रही है। फाइव 30 जब यूएई टाइम, जब मार्केट खुलेगी, तब उस समय कोई ट्रेंड नहीं है इसमें अभी। हाँ, यहाँ पे सेलिंग आती है, यहाँ पे बाइंग आती है, कहानी तो ये है। हाँ, डेली की हम बात कर रहे थे। डेली अगर हम देखते हैं यूरो यूएसडी का, तो ये डाइवर्जन है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें 4 आवर में, अगर मार्केट ही साइडवेज है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो दैट केस में कि RSI अगर ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन डेली चार्ट में, और कंफर्मेशन लेना हो प्राइस एक्शन का, देन इट विल गिव द बेस्ट सिग्नल कि ये अगर, एक तो RSI ओवरबॉट था डेली चार्ट में, डाइवर्जन था, इसको ब्रेक करने के बाद एक्सपेक्टिंग कि ये जो लास्ट जहाँ से ये यूरो यूएसडी की राइज हुई थी, यहाँ से ये चला था यहाँ तक, देन 61 to 78% फॉल एज पर द चार्ट सेटअप। तब वो लेवल आता है ये 1.1148, देन 1.1026। इस बीच में कभी इट डिपेंड्स कि हो सकता है बाय करें, स्टॉप लॉस हिट, सेल करें, स्टॉप लॉस हिट, या बाय करें प्रॉफिट में क्लोज करें, सेल करें प्रॉफिट में क्लोज करें। लेकिन साइडवेज मार्केट में होता ये है कि एक बार ये ट्रैप करता है, इट गिव्स मल्टीपल प्रॉफिट बट वन टाइम दे विल ट्रैप। सो उस समय अगर आप ये डिसाइड कर लें कि ये साइडवेज है और एक बार हम ट्रैप होंगे, यहाँ पे जो सेल करता है और यहाँ पे जैसे बाय करते हैं, यहाँ पे गिरेगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर यहाँ पे सेल करते हैं ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे सेल करें ऊपर जाए, फिर सेल करें ऊपर जाए, फिर सेल करें, नहीं। तो लॉजिक ये है कि ये रेंज बाउंड है, इसको ब्रेक करने के बाद, क्योंकि डेली में हम देख चुके हैं कि ये डेली में
एक बार ओवर बॉट जाने के बाद 75 के बाद एक बार ये जो है 60 के बाद ये 50 इतना तक आता है, लेकिन इट्स टेकिंग सपोर्ट हियर 1.1306. So we break this, then we can go for buy, sorry, sell. एग्जिस्टिंग ट्रेंड चूंकि अभी भी यूरो यूएसडी में बुलिश है, सो बाइंग की तरफ अगर आप बायस्ड हैं तो ये नेचुरल है. सेल करने के लिए वी नीड कंक्रीट प्रूफ, तो वो अभी तक आया नहीं है, रेंज बाउंड है अभी तक. वन आवर चार्ट जो है वो बेस्ट सिग्नल देगा सबसे पहले अगर रिवर्सल आती है तो 1 आवर चार्ट में. और 1 आवर चार्ट भी अभी ये कहानी है इसमें. गोल्ड अभी भी अप जा रहा है 3293, 3305 के बाद हो सकता है गेन मोर टू 3336. और 1 आवर अगर चार्ट देखते हैं इसका गोल्ड का तो ये ब्रेक कर रहा है ये, लेकिन अभी भी ये मेन रीजन है ये इसका. और ये जो दो कैंडल है ये बहुत पावरफुल है, देखें ये और एक बार इसको ये ब्रेक कर चुका है. अब ब्रेक करने के बाद इट गोज हियर, देन शार्प फॉल. सेकेंड टाइम अगर ये ब्रेक करता है देन इट विल बी वेरी क्लियर, इट विल गो अप. हाँ, लेकिन डेली ट्रेंड गोल्ड का अभी भी अप है एंड 3260 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. और ये देख लें यहाँ पे 32612 32 जब इसमें जाता है तो इट्स बाइंग इज कमिंग. सो अनलेस ब्रेक 3261, जब तक ये 3261 को ब्रेक नहीं करता सेलर ट्रैप हो सकता है. और अगर सेशन वाइज देखें तो 1 मिनट आज की देखिए कहानी क्या है. एशिया सेशन का हाई था 3337, देन इट मेक लो ऑफ 3268. ये जो लो बनाया ये फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन में, ये एक रिवर्सल साइन है एज पर द मार्केट मेकर का, जहां तक हम देखते हैं कि ये एक रिवर्सल साइन है. ये अगर इसको ब्रेक करता है तब डेफिनेटली गोल्ड जो है ये देखेंगे ये मार्केट इलिक्विड है. और ये मिड 3302 इज द मिड रेंज ऑफ द एशिया सेशन. ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये. 5:30 to 6 o'clock I mean COE time, it will be very clear gold will break 3302 or not. और 3302 ब्रेक करता है then it can go to गोल्ड है. हाँ, ये जोन में बाइंग जोन आ रही है. हाँ, इस जोन को अगर ब्रेक करता है देन रियली गोल्ड विल बी, देन आई थिंक. अभी तक तो हम बोल रहे थे गोल्ड रिट्रेसमेंट है, प्रॉफिट बुकिंग है, गोल्ड में फिर सेलिंग आ सकती है. इसका मेन रीजन ये है कि अगर 4 आवर चार्ट गोल्ड का देखते हैं, ये जो बाइंग थी ये सस्टेन बाइंग नहीं हो पाया. ये यहां से गया लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक कंप्लीट रिवर्स हो गया ये. तो जो भी या तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ 3452 से जिसने की सेलर है, और ये मार्केट रिवर्स हो गया ये यहाँ से. तो सबको ये कहानी पता है कि
ट्रैप तो करना है, चाहे जिसको ट्रैप करे, बायर को ट्रैप करे या सेलर को ट्रैप करे। लेकिन अभी तक कोई ट्रैपिंग नहीं हुई है इसके बाद, क्योंकि इसके पहले जो गोल्ड ने ट्रैप किया था, ये किया था ट्रैप ये। तो ये अभी कहानी बन रही है कि किस दिन ट्रैप करेंगे। और इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएस का जीडीपी है, जर्मन का जीडीपी है, नन फार्म पेरोल है फ्राइडे को। फ्राइडे मीन्स फ्राइडे, FRY। तो जो भी ट्रैपिंग होगी, ये पहले 3314, ये 3285 गया और यहाँ से सीधा गया यहाँ पे। और ये क्लियर कि जिसने भी सेलर जो यहाँ पे किया सेल, वो जो ट्रैप हुआ, इसका स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ। जब तक अकाउंट जो है मार्जिन कॉल नहीं आ गई, लोग तो यही सोचते हैं कि इतना ऊपर है चलो सेल करो, यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि हम तो माइंड की ट्रेड करते हैं, चार्ट तो ट्रेड करते नहीं है। अगर चार्ट को ट्रेड करें तब तो ये जो, अगर सेल भी, जो सेलर था अगर वो ट्रैप भी, अगर स्टॉप लॉस है या लॉस है, तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर सेलर को उस समय तो कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें टिके रहना। अभी ये है कि 8% ये डिमांड जोन है, लेकिन ट्रैपिंग अभी नहीं हुई है। ये ट्रैपिंग जनरली गोल्ड का $30 के आसपास होता है, जैसे ये 25 to 30 डॉलर होता है ये। तो यहाँ से ये ट्रैपिंग नहीं है, ये बाइंग आ रही है अभी लोगों की। तो इसको ब्रेक करने के बाद मेरे ख्याल से नन फॉर्म पेरोल तक हो सकता है कि गोल्ड इसी जोन में ट्रेड करे फ्राइडे तक। उसके बाद $50 की मूव कंफर्म है। और अभी ट्रंप ने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो वेटिकन सिटी से रिटर्न होके गोल्फ खेल रहा होगा। तो ये जोन है। अब अगर देखें जो भी अगर है, इसको भी अगर ब्रेक करता है तो ये कंफर्म है कि ये 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है जनरली ये कंफर्म सेल होगा। और इसको ब्रेक करने के बाद या इससे लोअर जाएं तो ये एरिया जो है ये काफ़ी शार्प है ये फॉल। इसका 50% एटलीस्ट अगर हम देखते हैं, तो अगर हम मेजर करें 50% या 60% अगर फिबोनाची ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ से इस फॉल का, तो एक सिंपल मेथड ये है कि ये एक ट्रायंगल बना दें और ये है मिड पॉइंट, ये है 3299 ऑफ दिस फॉल। इसके ऊपर 1 2 3 कैंडल जो है अभी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो हो सकता है कि 3299 ब्रेक करने के बाद गोल्ड में एक 3337 तक की रैली आए। और एज पर द 1 आवर चार्ट 330 ये है हमारा 50 मूविंग एवरेज, ये है 200 मूविंग एवरेज, ये 13। तो 13 के ऊपर जाए तो हम बोलते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन ये 200 और 50 के ऊपर आ जाए तब तो हम कंप्लीट कर सकते हैं कि एज पर द इट इज़ नॉट मेकिंग न्यू लो एंड सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। तो यूएस मार्केट ओपन का वेट करते हैं। अब तक जो कहानी ये है, तो एक बार फिर से 32 मंजिल 3300 एंड गोल्ड का ये है सपोर्ट ये। एंड यूरो यूएसडी का, यूएसडी सीएचएफ का अगर देखते हैं तो 8318 और 8253। हाँ 8318 के ऊपर फिर ये ऊपर निकल जाएगा। और अगर हम गोल्ड का देखते हैं, सॉरी यूरो यूएसडी का, तो यूरो यूएसडी का अगर 1 आवर चार्ट देखते हैं तो ये है अपसाइड 1.1381 और डाउन साइड जनरली होता क्या है कि ये जो लार्ज फॉल है, ये
इसको बस ऐसे कर देंगे, इसके ऊपर फिर ऊपर, इसके नीचे फिर नीचे, एंड एज पर द 1 आवर ये मूविंग एवरेज के नीचे होगा, ऑल द मूविंग एवरेज 250। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 1.1329, अपसाइड 1.1380। सो thank you who have joined this live session. So if anyone want one-to-one session, then they can join through the Tradify. It's a very good learning management system, and it will enhance your understanding. All the mentors here at Tradify are very expert, which give more importance to practical aspect, what's going on in the market. They doing 3 level of analysis: fundamental, technical, and sentiment, all analysis, and all the mentors are very good, and they have custom made, means their course is customized as per your need. So यहीं पे इस लाइव सेशन को रैप करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.